السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سمندروں کو سیاہی بنا دو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل بھی، مکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,54,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوسف۔ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے۔ ہر لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، لا يصفه الواصفون ولا تعجره الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا۔ ولا يخشى الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں۔ يعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں۔ اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے۔ وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے۔ اور درخت صرف یہ نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں، توبہ توبہ، درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1-2 دن کی طرح گنا ہوا ہے۔ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری۔ بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماعتیں جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی، اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی، اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانہار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ ولیس فوقہ شیء ولیس دونہ شیء ولیس کمثلہ شیء وهو السميع البصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، اکثر تو ماشاءاللہ نوعمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر۔ یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی۔ تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے۔
ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کے، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد، کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے، ما لہا من فروج، دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ حل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دو، حل ترا من فطور، ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام، وہ حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چیونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے۔ چیونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر، چیونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی، یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، انہوں نے ناک کی چھوٹا تھا، نک ایڈا بڑا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے۔ جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے ہوئے کھا دو، جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے۔ اغطش لیلہا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا۔ آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے، رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتوں آ گیا، کیسے آ گیا، تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، وَمَرْعَاهَا، چارہ اللہ نے نکالا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑ اللہ نے لگائے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بارش تیرے اللہ نے اتاری۔ بادل، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخار بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں۔ سمندر کی سطح سے 15 ارب ٹن 1 سیکنڈ میں پانی بخار بن کے اوپر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب موجیں آتی ہیں تو بلبلے پھٹتے ہیں، ہوا بلبلوں کے باریک ذروں کو پانی سمیت اوپر اٹھاتی ہے، ان میں نمک ہوتا ہے، وہ نمک اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے،
अल्लाह बुखारात को उठाता है, पूरी दुनिया को बुखारात से घेरा हुआ है। जब अल्लाह बारिश का इरादा फरमाता है तो एक जगह के बुखारात को ठंडा करना शुरू कर देता है, वो ठंडे होते जाते हैं, नमक भी ठंडा करता है, फिर वो कतरे बनते हैं, फिर जब वो कतरे बनते हैं तो वो मोटे होते हैं, जब वो मोटे हो जाते हैं तो हवा उनको उठा नहीं सकती, तो एकदम अल्लाह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरे रब ने पानी को उतारा क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज है। 1200 मीटर से बारिश आती है, 1200 मीटर से, 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता उसी रफ्तार से तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है, इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख, सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख, कहीं कोई बच सकता था? मेरे रब ने कहा सबबनल माअ सब्बा। अल्लाह हमें कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाया। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने बारिश बरसाई बरसाना, हमने बारिश को बरसाया बड़े अनोखे अंदाज में। क्या अंदाज है? 558 किलोमीटर है, बीच में हवाई स्पीड ब्रेकर है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि जब वो पानी नीचे आते 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 मेरी खोपड़ी पे आता है, छत पे आता है, तो उसकी रफ्तार होती है 8 किलोमीटर फी घंटा। 500 किलोमीटर को हवा में उड़ा देता है, उसकी रफ्तार रह जाती है 8 किलोमीटर फी घंटा। अन्ना सबबनल माअ सब्बा। फिर क्या किया? सुम्मा शक़क़नल अर्द शक्का, फिर तेरे रब ने जमीन को फाड़ा। फिर क्या किया? फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द, फिर तेरे रब ने जमीन में पानी को जखीरा कर दिया, उसके मसामों में पानी भर दिया। अगर अल्लाह कहता 60 साल का पानी इकट्ठा कर लो टैंकी, कौन इकट्ठा करता? नलका लगाओ, पानी ताज़ा निकालो। और आपको अजब बात बताऊं, पूरी दुनिया में मीठा पानी कितना होगा जो आप रोज पीते हैं? पूरी दुनिया में जमीन में मीठा पानी सिर्फ 3%, 97% खट्टा, खारा, कड़वा, कसीला पानी है। समंदर देख लो ना, 71% समंदर है और 29% जमीन है, तो 71% पानी खारा खट्टा। तो मेरे रब ने क्या किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब ने पानियों को चलाया और उनको मिलने नहीं दिया। ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, ये कड़वा जा रहा है, ये मीठा जा रहा है, ये मिलते नहीं है। यहाँ नल का खोदा कड़वा पानी, यहाँ नल का खोदा मीठा पानी, ये आपस में मिलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलते? समंदर का पानी जमीन में क्यों नहीं जाता? ये अल्लाह कह रहा है हम बैनहुमा बरज़ख़, तेरे रब ने मीठे कड़वे में पर्दा लगा दिया है। कोई प्लास्टिक का पर्दा है, कोई ईंटों का पर्दा है, कोई शीट का पर्दा है? नहीं, अम्र हक्म। मीठे पानी तू भी मखलूक है, कड़वे पानी तू भी मखलूक है, तूने इधर नहीं जाना, तूने उधर नहीं जाना। मेरे बंदों को मीठा पानी मिलता रहे इसलिए तुमने कड़वे में नहीं जाना, और मेरे बंदों को बारिश मिलती रहे। समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। क्या अजीब बात। अगर समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती, समंदर का पानी मीठा होता तो ये गंदा हो जाता, इसमें गंदगी पैदा हो जाती और वो गंदगी की बदबू हवा में जाती और हम समंदर की गंदी हवाओं से मर जाते। इतनी बदबू पैदा होती। नमक को तेजाब बना दिया, तेजाब पूरी गंदगी समंदर की को गलाता रहता है, गलाता रहता है, गलाता रहता है। और नमकीन पानी से बुखारात उड़ते हैं जो ऊपर जाते हैं, वहाँ ठंड पैदा करते हैं। फिर उसके नीचे फिर उस पर अल्लाह का अमर आता है, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, देख तेरा बादलों को कैसे हाँकता है। हम पहले घोड़े होते थे ना, अब तो घोड़े टांगे खत्म हो गए, तो वो जब सुस्त होता था तो छांटा मारता था। ये होता है युज़्जी, छांटा मारो भाई, वो तेज हो गया। व्याख्या करो, तेरा रब बादलों को कैसे भगाता है, कैसे हाँकता है, कैसे चलाता है, न नीचे आने देता है, बहुत ऊपर जाने देता है, ऐसी जगह रखता है जहाँ ठंडक भी हो जाए, जहाँ पानी आए तो इंसानों को वो पहुंचे भी सही। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उन टुकड़ों को जोड़ देता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, ऊपर नीचे उनकी तहें बना देता है। फतरल वदक यखरुजु मिन खिलाले, कभी बारिश के कतरों को देखा तो करो कि इन्हें कौन उतारता है, इन्हें कैसे उतारता है। एक धार बन के आता पानी, अगर पानी धार बन के आता
तबाह हो जाती सारी कायनात। कतरा 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 बखेर देता है और फिर कहता है यालम अदद क़तर अल-अम्तार, तेरे रब को बारिश के कतरों की तादाद का भी पता है। सिर्फ आज जो बारिश हुई है वो नहीं, आदम से लेकर बारिशें शुरू हुई और आज तक हो रही हैं और आइंदा भी होंगी। इन सारे ला तराहुल उयून, पूरी हदीस सुनो, या मन ला तराहुल उयून, ऐ वो ज़ात जिससे आंख देख नहीं सकती, मैं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं देख सकता, मैं उसको ख्याल में लाना चाहता हूँ। वला तुखालितुहु तनूम, तेरा ख्याल भी वहां नहीं पहुंच सकता, मैं उसको ख्याल में लाना चाहता हूँ, नहीं आ सकता। वला यसिफुहुल वासिफून, कोई उसकी तारीफ तक पहुंच नहीं सकता। अल्लाह अकबर का हम सब, आप लोग ये समझते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मतलब बहुत छोटा और कमजोर मतलब है। अल्लाह अकबर शाअ नूर मुहम्मदिन व बदत लवाइहुहु बिहादल मशरदी वल यमनु खय्यम फी जवानिबिहि हिल्लती अबदन तगुस्सु बिकुल्लि हब्रिन मुर्शिदी। बहुत पुराना शेर याद आया। अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, जितनी भी अल्लाह की तारीफ करोगे अल्लाह उससे बड़ा है। अल्लाह पहाड़ के बड़ा है। कोई गल करन ये हमारे चुके तबलीग वाले कहते थे तेरी दुकान छोटी है अल्लाह बड़ा है। अल्लाह ने भी हंसमदा होगा, भाई ये की कितनी जाती, मुझे दुकान के सामने ला रहा है, तेरी दबली छोटी है अल्लाह बड़ा है, और तेरी तिजारत छोटी है अल्लाह बड़ा। अरे वो ये तो कुछ नहीं है। अल्लाह ने एक फंड से कोई जमात पैदा की, उनको कहते हैं सदलुका, सदलुका। वैसे अंगूठा कर दे, उससे नाखून और सातों समंदर आ जाएंगे, कतरा सींचे नहीं जाएगा। सदलुकन, अचानक ही याद आई पड़े जमाने के बाद, उसके अंगूठे के नाखून पर 7 समंदर डाल दो, पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो कैसा खल्लाक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, तूने फरमाया था जमीन आसमान को ईतिया तौवन व करहन, झुक जाओ मेरे सामने खुशी या नागवारी से, तो अगर ये ना करते तो फिर तू क्या करता। अल्लाह ताला ने फरमाया एक जानवर छोड़ता और 7 जमीन आसमान को निगल जाता। ये जो हमारा खला है, हमारा खला, इसको यहां से चल के यहां तक जाने के लिए रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 मील फी सेकंड, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। एक जहाज यहां से उड़े 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से और 90 अरब साल उड़ता रहे, फिर जाकर दूसरे किनारे पर जाएगा। और अल्लाह कहता है ये तो छोटी चीज है, छोटी चीज, ये तो मैं छोटी चीज है जो मैं बनाई। आसमान उससे ऊपर, दूसरा उससे ऊपर, तीसरा उससे ऊपर, चौथा उससे आगे, पांचवा उससे आगे, छठा उससे आगे, सातवां उससे आगे, जन्नत उससे आगे, कुर्सी उससे आगे, अर्श उसके आगे। अर्श के एक कोने में एक समंदर है जिसमें एक मौज उठती है तो 7 जमीन आसमान के बराबर होती है। ये तेरा रब है। ला यसिफुहुल वासिफून, अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ। ये है अकबर का असल माना कि तेरी जितने भी तारीफ करें तो उससे बड़ा है, तो ये जितना भी बयान करें तो उससे बड़ा है। खुद मेरा रब फरमाता है दरख्तों को काट के कलम बना दो, वलो अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, समंदरों को स्याही बना दो, वल बहर यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर, एक नहीं 7 समंदर स्याही बना दो और फिर बैठ जाओ और मेरी तारीफ लिखो और लिखते जाओ और लिखते जाओ। तुम भी लिखो, जिन भी लिखें, फरिश्ते भी लिखें, जिब्रील भी, मिकाईल, इस्राईल भी, इसराफील भी, अर्श के फरिश्ते भी, 1,24,000 नबी भी, 5 बड़े रसूल भी, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मेरी तारीफ लिखो। समंदर खत्म हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, तेरे रब की तारीफ का जर्रा भी अदा ना होगा। ये है अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ। अल्लाह हर तारीफ से बड़ा है, हर तारीफ से बड़ा है। हर ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। ला यसिफुहुल वासिफून व ला तुअज्जिरुहुल हवादिस, उस पर हादिसात का असर नहीं होता। वला यख्शद दवाइर, ज़माने की नरंगियों से वो डरता नहीं, इनकलाब ज़माना से वो डरता नहीं। यअलमु अदद क़तरिल अम्तार, ये लफ्ज़ सुनाने के लिए पीछे से मैं आया हूँ। अल्लाह तेरा रब बारिश के कतरों की तादाद जानता है। अदद वरक़िल अश्शार, तेरा रब दरख्तों के पत्तों की तादाद जानता है। और दरख्त सिर्फ ये नहीं, कपास के पौधे में कितने पत्ते होते हैं,
धान में कितने पत्ते होते हैं, गंदम में कितने पत्ते होते हैं, बेलों में कितने पत्ते होते हैं, पीपल में कितने पत्ते होते हैं, बोहड़ में कितने पत्ते होते हैं। मैं अफ्रीका गया हूँ, तौबा तौबा, दरख्त के जिन्नात खड़े हुए हैं, उनमें कितने पत्ते होते हैं। और मेरा रब कहता है सारी कायनात के, सारे दरख्तों के, सारे बेलों के, सारी फसलों के, सारे बागात के पत्तों को तेरे रब ने एक दो दिन की तरह गिना हुआ है। कितने गिर गए तेरे अल्लाह को पता है, कितने खड़े हैं तेरे अल्लाह को पता है, कितने फल हैं तेरे अल्लाह को पता है, कौन सा फल किसके नाम है तेरे अल्लाह को पता है। हैदराबाद में आम पैदा हुआ, नाम लिखा हुआ है मियाँ चन्नू के आदमी का, उसे वहां से ट्रकों पे उठाता है, उसे मियाँ चन्नू की मंडी में लाता है। तो रोजाना लोग उसको देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। फरिश्ता खड़ा होता है, छोड़ दे हज़रत इदरीस का नाम, तेरा नाम ही कोई दफा। दूसरा आता है, तीसरा आता है, खड़ के फिर इदरीस आता है, चल गंदा है, गला उठा के थैले में डालता है कि तेरे रब ने ठप्पा लगा दिया था कि हैदराबाद में होगा पर खाएगा इदरीस, हैदराबाद में होगा खाएगी ज़ैनब। ये मेरे रब की रज़्ज़ाक़ियत है, रज़्ज़ाक़ इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। तेरा रब जबरदस्त राज़िक़ है, चींटी को नहीं भूलता, कीड़े को नहीं भूलता, परवाने को नहीं भूलता, सांप को नहीं भूलता, बिच्छू को नहीं भूलता। तुझे भूल जाएगा या इब्न आदम खलक़्तुस समावाति वल अर्ज़ वलम अअद ख़ल्क़हिन। मेरे बंदे, मैंने सात ज़मीनें बनाई, मैंने सात आसमान बनाए, मैं नहीं थका। फ़युअ्ज़िनी रग़ीफ़ु ऐशन असुक़ुहु इलैह। तुझे एक रोटी खिला के थक जाऊंगा, तुझे रोटी खिला के थक जाऊंगा, जमीन आसमान बना के तो थका नहीं। तो क्यों कहता है किथू खावा, क्यों कहता है कि मैं खावा, क्यों कहता है रिश्वत तो बगैर कम नहीं, झूठ तो बगैर कम नहीं, हराम तो बगैर कम नहीं, मिलावट तो बगैर कम नहीं, क्यों कहता है? क्या तेरे रब के खजाने खत्म हो गए? लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रत्बकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उनसकुम, तुम सारी कायनात इकट्ठे होकर कामो फी सईदिन वाहिद, एक मैदान में खड़े हो जाओ, फसालूनी, सारे मांगो, इंसान भी, जिन्नात भी, फरिश्ते भी, जानवर भी, दरिंदे भी, परिंदे भी, चरिंदे भी, कीड़े भी, मछलियां भी, मांगो सारे, मैं सबका चाहत दे दूं तो मेरे खजानों में एक कतरे के बराबर कमी नहीं आती है। ये अल्लाह के खजाने हैं। फिर मुसलमान कहता है झूठ ना बोलो तो कैसे कारोबार करो, मिलावट ना करो तो कैसे रोटी खाऊं, रिश्वत ना दो तो कैसे रोटी खाऊं। कभी अल्लाह को आजमा के तो देख। यालम अदद क़तरिल अमतार व अदद वरक़िल अशजार व अदद मा अज़लम अलैहिल लैल व अशरक़ अलैहिन नहार। जहाँ तक रात जाती है अल्लाह जानता है, जहाँ तक दिन जाता है अल्लाह जानता है। और अल्लाह एक मिसाल देता है, फयरा दबीबन नमलतिस सौदा अला सखरतिस सम्मा फिल लैलतिज़ ज़ल्मा। काली रात है ना, अभी चांद कुछ तो निकला हुआ है, चांद भी गायब हो, तारे भी सो जाएं, रात अंधेरी हो, काले बादल हो और काला पहाड़ हो और काली चट्टान हो और काला पत्थर हो, उस पर एक काली चूंटी जा रही हो और उसके ऊपर पत्ते हो, वो पत्तों के नीचे जा रही हो, तो तेरा रब कहता है कि इस काली रात में, इस काले पत्थर पर, इस काली चट्टान, इस काले पहाड़ पर एक काले रंग की जो चोटी जा रही है, वो नहीं, उस चोटी की टांगों से जो लकीर बन रही है, मैं वो लकीर देख रहा हूँ, वो लकीर देख रहा हूँ, लकीर, चोटी नहीं, लकीर देख रहा हूँ। वहुव अस्समीउल बसीर अर्रहमान अर्रहीम अलमलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुल्क अलमुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अलखालिकुल बारिकुल मुसव्विरुल गफ्फार अलक़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताह अलअलीमुल क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िदुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल अस्समीउल बसीर अलहकमुल अदल अल्लतीफ़ुल ख़बीर अलहलीमुल अज़ीम अलगफ़ूरुश शकूर अलअलियुल कबीर अलहसीबुल मुक़ीत अलजलीलुल करीम अर्रक़ीबुल मुजीबुल वासिअ अलमजीदुल बाइस अश्शहीदुल हक़ القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ. ہاں یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے، سمندر کے پانی کو تولا ہوا. کڑی وڑی ترکڑی ہوئی دی اللہ دی،
कितना बड़ा तराजू होगा, समंदर का पानी तोला हुआ है। वो मसाकिल अलजिबाल, पहाड़ों का वजन तोला हुआ है। हिमालय पहाड़ का कितना वजन है पता है? केटू का कितना वजन है पता है? रकापोशी का कितना वजन है पता है? को हिंदू कुश का कितना वजन है पता है? कोहे कराक्रम कितना है पता है? कोहे हिमालय कितना है पता है? मसाकिल अलजिबाल ला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ, आसमान में ताकत नहीं कि उससे कोई चीज छुपा सके। मेरी आंख को छत पे जाके अटक गई, मैं आगे क्या, मैं तो पीछे नहीं देख सकता। और मेरा रब कायनात को ऐसा नहीं देखता कि इधर देखे तो इधर पता ना चले, इधर देखे तो इधर पता ना चले। एक ही वक्त में अर्श से लेकर तहत सरा तक, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जनूब, एक पत्ता भी हर पत्ता तो बहुत बड़ी सी है, एटम का ज़र्रा भी हरकत करता है तो अल्लाह देखता है। ला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ, आसमान छुपा नहीं सकता। वला बहरुन मा फी क़ारिही, समंदर की तह में कोई आज तक नहीं गया, ना कुछ जा सकता है। पानी का प्रेशर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर लेता है। पिछले साल जो एक आप दोस्त टुकड़े टुकड़े हुई थी, कैसे हुई थी? पानी के प्रेशर ने उसे पुर्जे पुर्जे कर दिया। तह तक आज तक ना कोई गया है, ना कुछ जा सकता है। फिलिपाइन के पास बहरुल काहिल 11 किलोमीटर गहरा है। 11 किलोमीटर, 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी पानी में नहीं जाती, गुप्त अंधेरा होता है। और मेरा रब कह रहा है उन अंधेरों में, वो समंदर की जमीन की तह में जो कीड़ा फुरक रहा है, तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबरन माफी वारही, और पहाड़ों के गार, लंबे गार, अंधे गार जो उससे अंदर है, तो तेरा रब वो भी जानता है। ये है तेरा अल्लाह, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे दीन, सारे नबियों की दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, अल्लाह खुश तो होता ही होगा, भाई चलो लगे तो नजीब में है। तबलीग का पहला सबक है ला इलाहा इल्लल्लाह। शुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं कांप जाता हूँ कि मुझे इसकी मुश्किलात का पता है। यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुने तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बेयकीन। कलमा सीखा होता तो आज जलील ना होते। कलमा ही नहीं सीखा, पहला इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ फा है, फा का मतलब है सबसे पहले सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस शहंशाह के खजानों में कोई कम नहीं, उससे नफा उठाने का एक रास्ता है, हर एक को नहीं मिलेगा, देगा दुनिया में सबको देगा। फिरौन को भी दिए, शद्दाद को भी दिए, नमरूद को भी दिए, सबको दी, सामरी को भी दिया, गैर अपनों को भी दिया, गैरों को भी दिया। आखिरत में लेने के लिए और दुनिया में इज्जत आफियत से अल्लाह से लेने के लिए एक रास्ता है, सिर्फ एक। याद आओ अखबर अन्नास, हर बड़े जमाने के बाद हदीस से आ गए, सुभान अल्लाह। लो जाओ नहीं मिन कुल्ले तरीक, इनसे कह दो जहां से भी आओगे मेरे पास आने के लिए, मुझे पाने के लिए, जिस तरफ से भी आओगे सब रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं। लो जाओ नहीं मिन कुल्ले तरीक, दुनिया में जितने रास्ते हैं दावेदार के अल्लाह तक पहुंचाते हैं, सब रास्ते तेरे रब ने बंद कर दिए हैं। सिर्फ एक रास्ता खुला है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी सब रास्ते बंद हैं, इसलिए कलमे का हिस्सा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़ो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेराज पर गए, या अल्लाह तूने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को हवा ताबे करके, और ईसा को तूने गुर्दे चिल्ला करके दिया अलैहिस्सलाम। फमाज़ा चाली कली मिलूंगी ये तय मुझे क्या दिया है? तो अल्लाह ने कहा अवले सफत आते तो का अफसल मिन दालिका कुल्ले, मेरे हबीब आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। अल्लाह तो कतलीला तो कतमही, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ लिया है। कभी अदब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आदम भी जोड़ा, नूह भी जोड़ा, शीश भी जोड़ा, इदरीस भी जोड़ा, इब्राहिम भी जोड़े, इस्माइल भी जोड़े, इसहाक भी जोड़े, याकूब भी जोड़े, यूसुफ भी जोड़े, सालेह भी जोड़े, हूद भी जोड़े, और मूसा भी जोड़े, यूसुफ भी जोड़े, यूनुस भी जोड़े, ईसा भी जोड़े, इदरीस सब जोड़े। लेकिन ट्रांसफर तब्दीली होती है तो नई शक्ति लग जाती है।
دی اچھی بدلا نہیں تختی ڈال دے. جب آیا لا الہ الا اللہ کہنا محمد رسول اللہ تو اللہ نے ایسا زور دکھایا کہ پیار ان کا نامر بھی رنگی ہو. آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا اور یہ اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو میرے رب میں خطا ہے وہاں سوس و راسی کر کے میری بات صرف ایک راستہ ہے. فلا عرب لا یؤمنون حتی یقدموا فیما اشترا بینہم. پڑھاؤ گیت چنوان نام محمد سے جان دیتا ہوں تو میرا رب اعلان کرو پوری دنیا ہو گیا مجھے آپ کے حرم کی قسم جب تک تیرے غلام نہیں بن گئی کوئی شے قبول نہیں. یا جب تک بلا کی جانے کی کوئی شے قبول نہیں ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بات سوچ ہے جنت کا پاس ہو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ویزا ہے. محمد رسول اللہ ویزا ہے. اللہ نے دنیا پھرائی مجھے سارے 100 کے قریب ملک دیکھے ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے تو جنت ایڈی سستی ہے کہ بغیر ویزے دی بڑھ جاؤ گے. فلا وربک مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں آپ کے غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں نہیں کریں گے تو یہ مردود ہیں. چاہے چاچا ہو چاہے ماما ہو چاہے قریشی ہو چاہے سید ہو صرف وہی قبول ہے صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا اور کوئی نہیں. بلال حبشی ابو لہب قریشی ابو لہب چاچا ابو لہب بنی ہاشم کا سردار میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب برباد ہو گیا ابو لہب. اور بلال بن رباح دادا کون ہے مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا. مجھے پڑھنے کا شوق تھا میں نے پڑھا مجھے آج بھی شوق ہے اب میں پڑھ نہیں سکتا میرے سر میں درد رہتا ہے پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے. تو ابو بلال کہندہ پتر ربا کہندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں لیکن آپ نے کیا کہا جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے شام میں. میرے نبی کہاں ہے مدینہ میں. جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے. بلال شام سے نہیں اٹھے گا روضہ پاک سے اٹھے گا بلال اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا. سبحان اللہ. اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا. جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے بلال اذان دے. تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے. وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا. بلال کھڑا ہوا ہے حبشی نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ حبشی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے. یہ ہے محمدی ہونا یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا. غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے. میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی. لعمرک ہے میرے محبوب. دیکھو ہمارا بھی مور یا تیری جان دی قسم ہے نا یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے تیری جان کی قسم. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک تیری جان کی قسم لعمرک تیری جان کی قسم. اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا لا تمدن عینیک آپ کے چہرے کا ذکر کیا فول وجہک آپ کے بالوں کا ذکر کیا والضحی واللیل اذا سجا آپ کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لک صدرک آپ کے دل کا ذکر کیا علی قلبک آپ کی کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا فلا تذهب علیہم نفسک حسرات آنکھوں کا ذکر آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل یدک مغلولا ہاتھ کو الگ کیا آنکھوں کو الگ کیا زبان چہرے کو الگ اور زبان کو الگ لا تحرک لسانک لا تحرک به لسانک چہرہ سینہ کمر پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا پھر کہا لعمرک تیری جان کی قسم تیری جان کی قسم. یہ میرا نبی ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی چابی جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے. انا قاعدهم اذا وفدوا میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا.
अन मुबश्शिरहुम इज़ा अयसू, जब लोग नाउमीद हो जाएंगे मैं उम्मीदें बशारत सुनाऊंगा। अन शाफ़िहुम इज़ा हुबिसू, जब लोग डर जाएंगे तो मैं उनकी सिफारिश करने वाला हूँगा। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। कुल्लुन नास तहत लिवाई आदम व मन सिवाहु, सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, सारे इंसान मेरे झंडे के नीचे होंगे। इलैया मफ़ातिहुल जन्नत यौमल क़ियामा, जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी, मेरे हाथ में जन्नत की चाबी होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व इन्नहा लमुहर्रमतुन अलल उम्म हत्ता तदखुलहा उम्मती, सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मेरा कदम न पड़े, सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत का कदम न पड़े। इसको आज इसकी ज़िंदगी को सीने से लगा लो, इसकी एक एक अदा महफूज है। क्या मेरा रब कहता, वद्दुहा, तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, तेरी घनी ज़ुल्फ़ों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, तेरे रब ने तुझे कहाँ छोड़ा है। अलम नशरह लका सदरक, मैंने तो आपका सीना खोला। व वज़अना अन्का विज़रक, मैंने तो आपके बोझ हटाए। व रफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने आपका जिक्र बुलंद और ऊंचा किया। अज़ान में, इकामत में, हर जगह मेरे नाम के साथ आपका नाम गूंजेगा, गूंजेगा, गूंजेगा। और वही सुहागन होगा जो आपका गुलाम बन के आएगा, वही सुहागन होगी जो आपके ताबे होकर आएगी, बाकी सबको मरदूद कर दिया जाएगा। ये मेरा हबीब है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इसकी पूरी पीढ़ी में सुनाया करता हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुगै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन लज़ार बिन मुअज़ बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन खमवाल बिन उज़ै बिन अवाम बिन नाशिर बिन हिज़ा बिन बल्दास बिन इग़लास बिन ताबित बिन जाम बिन नाहिश बिन माखि बिन ऐफ़ी बिन अबखर बिन उबैद बिन अब्तुहा बिन हमदान बिन संबर बिन यथरिबी बिन यहज़न बिन यरहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसा बिन अक़नात बिन लीहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन ज़ारिह बिन समी बिन मज़ी बिन इवद बिन इराम बिन किज़ार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदम बिन नाहूर बिन सरूर बिन रऊद बिन फ़ाहिद बिन आदम बिन अरफ़क्षार बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मथूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ईद बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मेरा नबी है। व अहसन मिन कलम दरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तरिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ नसीमा जानबे बतहा उदरकुम ज़अहवा मुहम्मद रा खबरकुम बबुरई जान मुश्ताकम दराका फिदाले रौज़ाए खैरुल बशरकुम या खैर मन दुफनत फिल क़ाए अअज़मुहु अताब मिन तीबिहिन अल क़ाउ वल अकम नफ्सक फिदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहि अल अफ़क़ व फ़ीहि अल जूद वल करम अंत अश-शफ़ीउ अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिरात इज़ा मा ज़ल्लत अल क़दम व साहिबाका ला अंसाहुमा अबदा मिन्नी अस्सलामु अलैकुम मा जरा अल क़दम। ये है वल नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा हवा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़क़िल अअला थुम्मा दना फ़ज़ल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़ब अल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा व लक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा आयात रब्बिल कुबरा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा किताबन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। फरमाया मेरे अल्लाह ने 10 नाम रखे, मैं मोहम्मद, मैं मैं माही, मैं हाशिम, मैं आकिब, मैं फातिह, मैं खातिम, मैं अबुल क़ासिम, मैं ताहा, मैं यासीन। और कुरान में शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज, मुनीर, रऊफ़ रहीम, अन्नबी, अन्नबी, अर्रसूल, अलमुज़म्मिल, अलमुद्दस्सिर। क्या क्या अपने हबीब का किस्सा सुनाऊं, क्या क्या सुनाऊं, अब वहाँ तक चलोगे। एक कलमा है, इसे याद कर लो, ये कलमा है, इसे सीख लो, ये कलमा है, इसे सीख लो। मज़े के साथ मौत आएगी, मज़ा के साथ कब्र होगी, मज़े के साथ हश्र होगा, आराम से नबी के पीछे जन्नत में दाखिल हो जाओ।
और फिर हमेशा की ज़िंदगी जहाँ कोई इंतहा नहीं, कोई इख्तिताम नहीं। यहाँ कोई ज़िंदगी है, पीछे मौत लगी हुई, यहाँ कोई सेहत है, पीछे बीमारी लगी हुई, यहाँ कोई जवानी है, पीछे बुढ़ापा रखा हुआ है, यहाँ कोई दौलत है, पीछे फ़क्र फाका भूख लगी हुई है, यहाँ कोई इज्जत है, पीछे जिल्लत लगी हुई है, और एक दिन मिट्टी में मिट्टी होकर ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। तो कहो मोहम्मदी बन जाओ, ये मेरे नबी की दावत है, इसको सीखो, इसकी नियत करो। पिछली जिंदगी नया साल, मैं तो आज पहली शब जुमा नए साल की बयान कर रहा हूँ, कहीं नहीं बयान किया शब जुमा पर, फैसलाबाद में भी नहीं हुआ किसी सर दर्द की वजह से। तो पहली शब जुमा है, पहला साल की शुरू है। आज बैठ के तौबा करो कि अल्लाह तेरी और तेरे हबीब की गुलामी में चली। करते हो तौबा? कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह की कसम अगर दिल से कहा है तो सब माफ हो गया, सब माफ हो गया, सब माफ हो गया। और मैं रब अपने हबीब पे कुर्बान जाऊँ। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे उम्मती, अल्लाह से डर नहीं, 70 दफ़ा भी तू तौबा तोड़े दिन में और फिर तौबा कर ले तो अल्लाह खुशी से कबूल करे। अल्लाह नहीं कहेगा हैं कि तूने क्या मजाक बनाया हुआ, बार बार तौबा तोड़ दो, बार बार तौबा तोड़ दो। नहीं, मेरा नबी सच ही दे के गया है, मा असर्रा मन इस्तग़फ़र व इन आद फिल यौम 70 मर्रा। हाँ, 70 दफा भी तौबा टूटे और तौबा कर लो तो अल्लाह कबूल करे। और फिर उस दिन को याद करो जब अल्लाह जन्नत के अंदर पहुंचाएगा और नौकरों की कतारें आएंगी, सलामन सलाहा, सलामन सलामा, और दाएं बाएं जन्नत की हूरें बैठी होंगी। एक थूक डाल दे समंदर में तो सातों समंदर लिखे हो जाएंगे। मैंने समंदरी सफ़र किए हुए हैं, जब भी सफ़र करता हूँ जहाज चक्कू पर चढ़ के समंदर को देखता हूँ, फिर इस हदीस को याद करता हूँ कि एक उसको थूक आता नहीं है, उसको थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। बस करके थोड़ा बनाए मुंह में पानी करे तो उसके जो चंद कतरे गिरेंगे, सातों समंदर शहर से इकट्ठे हो जाएंगे। तो सब बोल के समझो। तुम यहाँ गाने सुनते हो, वो तौबा करो इन गानों से, अल्लाह जन्नत की हूरों का गाना सुनाएगा। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह कहने लगा कि हम गाना बनाते हैं 60 मिनट, 60। मैंने कहा कि ना 4 मिनट कहना लोग सुनते नहीं, बोल रहे। और अभी मैं अक्टूबर में इंग्लैंड गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा अरबी नात खान आया हुआ था, मैंने वहाँ ये किस्सा सुनाया तो वो कहने लगा अब 2.5 मिनट है, अब 3.5 नहीं, अब 2.5 मिनट हैं। और मैंने कहा अरे पागल सुन, जन्नत की हूर का पहला गाना 70 साल का हो। अल्लाह की कसम, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे। उसकी आवाज़ तुम्हें खींच लेगी, उसकी आवाज़ में डूब जाओगे, गुम हो जाओगे। और फिर उसका चेहरे को छोड़ो, ये देखो उंगली का ये हिस्सा, सारे लोग आगे दिखा, ये देखो उंगली का ये हिस्सा जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की हूर उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूरज के सामने तारे गायब हो जाते हैं। तो इब्ने अब्बास फरमाने लगे जब उंगली का ये हाल है तो चेहरे का क्या हाल होगा। उसका मेकअप पता क्या है, अल्लाह अपना नूर उसके चेहरे पर डालता है जिससे वो हमेशा जवान, हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा खूबसूरत, पेशाब से पाक, पखाने से पाक, रोने से पाक, दुख से पाक, बीमारी से पाक, बुढ़ापे से पाक, तलाक से पाक, लड़ने से पाक, लड़ाई से पाक, झगड़े से पाक, हमेशा कंवारी। जितने दफा बीवी के पास जाए हमेशा कंवारी, हमेशा। एक जन्नत की हूर और खामिन की आपस में मिलाप की लज्जत को अगर पूरी आदम की औलाद पर तकसीम किया जाए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। मजे तो आगे आ रहे हैं, यहाँ क्या है। और उसका कद कितना है, 130 फुट। तुम्हारा कद भी होगा 130 फुट। और उसको जो लिबास अल्लाह पहनाता है, उसका जो फिराक होता है वो कितना चौड़ा होता है, 3 मील में घूमता है उसका फिराक, 3 मील में, 3 मील में। और एक जोड़ा नहीं पहनती, 100 जोड़े पहनती है। 100 जोड़े उठाएगी कैसे। मुझे ये जर्सी अभी भारी लग रही है गर्मी की वजह से। वो जन्नत के जोड़े और जन्नत के कपड़े को अल्लाह ने नूर से बनाया है, नूर का धागा निकाला है। नूर का वजन ही कोई नहीं होता, इन लाइटों का कोई वजन है तो 100 जोड़े पहनाएगा। एक कदम जब तुम्हारी तरफ आएगी 1 लाख नखरा दिखाएगी, एक कदम पर। यहाँ तो ये बेचारी घुंघरू पहनती हैं क्या क्या, फिर वो
रक्स सीखती हैं, डांस सीखती हैं, और जब बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्होंने कोई वेंदा ही कोई नहीं। और जन्नत की हूर को अल्लाह ने सिखाया है, वो एक कदम रखती है तो 1 लाख नखरे दिखाती है, उसको घुंघरू पहनने की जरूरत नहीं होती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांतों से जो नूर निकलता है पूरी जन्नत को रोशन कर देता है। और 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं जो यहाँ से चलते हैं यहाँ तक आते हैं, और उनमें मोती होते हैं, उसमें जुएं नहीं होती, उसमें मोती होते हैं। जो अपने बालों को यूं लहराती है तो पूरी जन्नत में रोशनियां जगमग 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 करने लग जाती हैं उसकी रोशनी से। जब वो मुस्कुराती है तो पूरी जन्नत रोशनियों से फैल जाती है। अल्लाह ने इनको तुम्हारे दाएं बाएं बैठाया होगा, और फिर आईना और फिर लाइबा, क्या कमाल है। हदीस शरीफ में आता है अगर आईना को लोग देख लेते और मौत जिंदा होती तो सब मर जाते। और लाइबा को जन्नत की हूरें कहती हैं, जन्नत की हूरें लाइबा पे आशिक हैं और कहती हैं लाइबा अगर ये मियाँ चन्नू वालों को पता चल जाए ना तो क्या चीज है, तो तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दें। इन बेवकूफों को पता ही कोई नहीं, पेशाब पखाने वाले तो मगर बजे बंदे। वो दाएं बाएं होंगी, नौकरों का सलाम होगा, सलामन सलामा सलामन सलामा। तुम्हें पता लोग सलाम करें तो आदमी का सर ऊंचा हो जाता है, तो वो बड़े मजे लेंगे। यार देखो यार मैं नौकर इतने सलाम कर रहे हैं, वो जाएंगे तो फरिश्ते आ जाएंगे, वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से फरिश्ते सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। अरे भाई तुम फरिश्ते नूरानी हम खाकी, तुम हमें सलाम क्यों करते हो? कहेंगे बिमा सबरतुम बिमा सबरतम बिमा सबरतम, जो तुमने मियाँ चन्नू में सब्र किया, जो तुमने दुनिया में सब्र किया और अल्लाह को राजी करते हुए जिंदगी गुजार दी, आज हमें हुक्म है तुम्हें सलाम करें। फरिश्तियानो दूर करो, फरिश्ते क्या चीज़ हैं, अभी उनका मजा खत्म नहीं हुआ होगा, एकदम मेरे रब का अर्शा तक मिलेगा, अल्लाह खुद फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता, सलाम पेश करता। अल्लाह पूछेगा खुश हो? कहेंगे अल्लाह बड़ा खुश। अल्लाह कहेगा राजी हो? कहेंगे अल्लाह बड़ा राजी। कहेंगे अल्लाह कहेंगे तुम्हें जन्नत से आला चीज दे दूं? कहेंगे अल्लाह जन्नत से आला क्या हो सकता है? तो अल्लाह फरमाएगा उहिल्ल अलैकुम रज़वानी फला अस्सतु अलैकुम अबदा, जाओ मैं आज राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। तो सारे जन्नती मर्द औरत कहेंगे या अल्लाह हम दुनिया में तेरी बंदगी करते थे, नमाजें पढ़ते थे, पर हमें पता नहीं था तो इतना खूबसूरत है। यूसुफ को बनाने वाला खुद कैसा होगा, मोहम्मद का बनाने वाला खुद कैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हमें पता नहीं था, तो हमारा जी चाहता है कि आज हम तुझे देख के एक सजदा करें, 2 नफल नहीं, 2 रकात नहीं, 1 रकात नहीं, 2 सजदे नहीं, एक सजदा तुझे देख के करें। तो मेरा रब फरमाएगा कद वदअतु अन्कुम मऊनतस सुजूद, वो मियाँ चन्नू में था, तुम मेरे गुलाम थे, मैं तुम्हारा आका था, तुम्हारे जिम्मे मुझे सजदा था। अब यहाँ आके हैसियत बदल गई है, अब तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूँ, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। अब तो तुम मेहमान हो, मैं तुम्हें तो आखा मैंने सजदा करो। कुलो अशरबू हनिया, खाओ पियो मौज करो, न नींद है, न ऊँट है, न मौत है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न दुख है, न गम है, न दिन है, न रात है, न गर्मी है, न सर्दी है। अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं। हर सेकंड में अल्लाह ऐसे निज़ाम बनाएगा कि गुम हो जाओगे। एक जन्नती ऐसे बैठा होगा और एक नज़ारे को देख रहा होगा और उसमें उसको 70 साल गुजर जाएंगे, तो अल्लाह फरमाएंगे तो हिके गलज फंस गया, किसी और शय में भी हमें पाओ कभी खाओ कोई और शय भी, तो जो ऐसे बैठा होगा तो यहाँ एक उसको हाथ लगेगा ऐसे, तो ऐसे पीछे मुड़ के देखेगा तो एक जन्नत की लड़की खड़ी होगी जिसके यहाँ उसको अपना चेहरा नजर आएगा, उसको अपना चेहरा नजर आए, वो तब फड़े के जाएगा अमाला कफीना मिन रकबतिन, आपको मेरी ख्वाहिश नहीं है? कहेगा क्यों नहीं, मैं कुर्बान जावा, मैं कुर्बान जावा, मैं ठर जावा, तो आगे कितने आऊं, तो हैं कौन, तो आई कितों है, कि तो मैं खुद कह रहा हूँ। तो वो कहेगा तू कौन है, तो मेरी जन्नत की तो नहीं है? तो वो कहेगी अना मिनल लवाती काल अल्लाह ताला वलदैना मजीद, आजा मेरे पास, एक दफा दे के बस नहीं करूंगा, देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा, न जिंदगी खत्म होगी न तेरे रब का देना खत्म होगा। तो मैं वो हूं जो रब ने मजीद भेजा है, मजीद भेजा है।
زندگی تو بھائیو وہ ہے، یہ کیا زندگی؟ فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاکت اغید تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواہر وزمرد حتی اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غرت الطیور ورطلت لحن الخلود بكل غصن املد۔ یہ جنت ہے، ترجمے کے بغیر ہی مزہ لو۔ تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کے مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سپیچ کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔